Hello and welcome to the YouTube channel of Cricket Next. The IPL is underway. The Asia Cup soon will start, and all eyes will soon be on the ODI World Cup, which starts in India in the month of October. To discuss about what's happening in the world of cricket and more, tonight we have a very special guest with us, former Pakistan cricketer Danish Kaneria, who is keeping a very close eye on whatever is happening in the field of cricket. So, welcome, Danish bhai. Thank you for joining us today. हाँ जी नमस्कार सभी को थैंक यू माय प्लेजर हाउ आर यू दानिश भाई डूइंग ऑल गुड। दानिश भाई पहले थोड़ा बताइए व्हाट ऑल यू हैव बीन अप टू दीज डेज। ट्वीट्स थोड़ा कम हो गया है, सो व्हाट इज हैपनिंग? ट्वीट्स थोड़ा कम हो गया थोड़ी सी टाइमिंग डिफरेंट है और ये है कि बिट बिट ऑफ बिजी और ये है कि ट्वीट मैं देखता हूँ लोग ट्वीट करते हैं ज़्यादातर वो करने के लिए अटेंशन पाने के लिए लेकिन उसके पीछे कुछ मकसद होना चाहिए अगर कोई चीज़ नहीं है कोई वैलिडिटी नहीं है जैसे हमारे त्यौहार आते हैं तो मेरा त्यौहार पे ट्वीट करने का मकसद ये होता है कि पूरे सनातन धर्म को दुनिया भर के अंदर जितने भी है उनको सबको विश करूं हमारे धर्म को और उजागर करूं और फिर प्लेयर के ऊपर या किसी एक व्यक्ति के ऊपर टॉन्ट करना कि उसको निकाल दो उसको ले लो इट्स ये मेरे को नहीं अच्छा लगता है क्योंकि हर प्लेयर आता है मेहनत करके आता है हर प्लेयर की एक कैलिबर होता है जितनी मुश्किल से वो आता है वो लोगों को नहीं पता होता है लोग अक्सर ट्वीट कर जाते हैं बट या So, Danish bhai, abhi where are you? Are you in the United States of America right now? Are you in the US right now? या So, abhi a lot is happening in the US too. Major league हो रहा है, minor league भी हो रहा है, और यूएस में वर्ल्ड कप का भी चांस है. तो कैसे देख रहे हैं इकोसिस्टम को? आप काफी क्लोज हैं. हाउ इज द इकोसिस्टम चेंजिंग? अच्छी चीज है चेंज होना चाहिए इट्स एवरीथिंग इज चेंजिंग वेरी वेल इट्स गुड टू सी एक कंट्री के अंदर जहाँ पर देयर वाज नो मच क्रिकेट नाउ टू मच ऑफ क्रिकेट इज हैपनिंग एवरीथिंग इज हैपनिंग so it's great to see that all the players are coming from all across the world and people are enjoying playing cricket over here and kids are playing cricket over here cricket क्योंकि mainly cricket is played between the Pakistanis, Indians and all the Asian communities so that is good to see सो अभी दानिश भाई को कोई ऑफर आया किसी एमएलसी फ्रेंचाइज से के लिए कि अभी आप उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते? yeah I don't know कि मैं यहाँ कब तक हूँ because I'm just traveling a bit from up and down ओके. हो रहा हूँ थोड़ा इस वजह से सो दानिश भाई आईपीएल कितना फॉलो कर रहे हैं? हाउ मच आर यू फॉलोइंग द ऑनगोइंग सीजन ऑफ द आईपीएल? आई नो I'm टाइम जोन following थोड़ा डिफरेंट. Yeah, no, I'm following it IPL क्योंकि IPL is one of the leagues that it's all about entertainment. कि 2 ओवर में अगर 50 भी चाहिए होता है ना तो कोई और लीग में नहीं बन सकता आईपीएल में बन जाएगा because वो करेक्ट. players ऐसे हैं because of the stature of the players because all are current players playing in IPL. If you see recently, yeah, New Zealand is in Pakistan. The New Zealand या. touring is in Pakistan, but their main player उनके जो top notch players है they are preferred to play in IPL and they are playing in IPL. So IPL is राइट. something where all the international players who are currently playing for their countries are playing या. in the IPL. And one thing the best of IPL is that if you see the IPL, it's about the performances. The franchise select the players. It's not about the या. names. राइट. If we see the other leagues over there, what happened? They go for the names. But over here, we can see Joe Root, या. top-notch player. He's sitting on the bench and giving या. water to the players. So you can see राइट. the standard of the IPL cricket. And the other thing that like Steven Smith, who was या. who was part of IPL a few years back, he played. Now या. he's not anymore या. part of IPL. So that's the राइट. standard which is set in the IPL. I think that's why the IPL is on the top of every league. Right. Danish bhai, I don't know whether you followed this or not, but today Sachin Tendulkar's son Arjun Tendulkar made his IPL debut today. वो मुंबई इंडियंस के लिए आज अपना पहला गेम खेले. सो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आप सचिन के साथ काफी क्रिकेट खेले, तो एक काफी No, स्पेशल मोमेंट रहता होगा किसी भी फादर के लिए अपने बेटे के लिए का डेब्यू देखना, वो भी डगआउट से. no, definitely the big moment for Arjun because he's been part of the Mumbai Indians setup from last year, not getting a chance. Today he got the chance. Uh, More I can discuss on Arjun when I will see him. I Yeah. I have not seen the game. When I will see the game and I will see the highlights of it, so I will Yeah. go. But it is a proud and very big moment for Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar by himself, a great Right. cricketer. The way he worked so hard in every aspect to come and be Yeah. the top of the shelf. So I think it's a big moment, and he knows that. कि मौका जब मिलेगा, तो just grab it with both hands, and that's the thing of a cricketer who has been a great cricketer knows that
opportunities will come, but you have to grab it. Once you Right. grab it, the things will flow in your place. Danish bhai, you were a very successful leg spinner in your time. Even in Test cricket, you used to be very, very aggressive. That's what I, growing up, really liked about your bowling. कि अगर दो छक्के भी लगते थे तो आप aggressive और होते थे और हवा देते थे. अब इतना leg spinners को importance दिया across the teams. चाहे आप T20 World Cup, if you see Adil Rashid did so well, Shadab did so well for Pakistan. All the leg spinners are doing so well at the international arena, in the IPL, in the various leagues. So what has changed? Have the batsmen kind of struggled to play leg spin, or are the bowlers getting more improved by the day? Bowlers are getting more improved, but the leg spin. See, what is the terminology of leg spin? It's spin the ball, right? Yeah. But I hardly see the bowlers are Right. spinning the ball, which is Right. I don't like it. If I see the names which you have took, Shadab Khan, if you see him, he bowls more googly than a leg spin. Right. Rashid Khan is a different breed because he is a different action. He quicks in the air. He's a different breed. Yeah. But Yeah. if I see Rahul Chahar, Yuvi Chahar, Yuvinder Chahal, who is struggling because nobody is spinning the ball. They don't have the guts. They don't have the heart to flight the ball and top up to the batsman. Come on, hit me. Because I see they got hit. They smile to the batsman and go back. Where is the aggression? Where is the intensity? That which I don't like it. If you're a bowler, man, have a courage to fight with the batter. Because I played my cricket like that. Because I used to get hit. I said, okay, I will come back, bang, bang again. I don't see that kind of intensity from the bowlers. Even the leg spinners, which I'm watching it, they're hardly bowling leg spin. They're bowling quicker ball, googlies and everything. Because I know one thing. If you can bowl in Test cricket, having the fielders up, T20 cricket is just a tea of cup. That's it. For me, it is like that. I take it like that because even today, if you put me in this scenario, in this against all the players, I will still worry the batsman because I know where to pitch the ball, which areas they are hitting. Because hardly I see the batters are hitting good cricketing shot over the extra covers, straight drive. Almost is in at the mid wicket and mid on region. So the leg spinner, which I'm watching it, they are not bowling the way like a leg spinner needs to bowl. Their leg spin, their googly, their flipper, their slider. The variation is very limited. I take it Right. T20 is just a piece of cake for me because it's very easy to bowl. Because when you will come to bowl, you have the fielders back and you can easily loop the ball up. You can do anything. You can get the turn. But now the bowlers are getting scared. Like the leg spinners are getting scared to pitch the ball up. They're trying so many things. They're bowling straighter one, lots of straighter one coming in. I think that is very poor, and which I don't like it about that. That a leg spinner cannot bowl proper leg spin. His googlies, his flippers, sliders, variations with the armory which the leg spinners have, and they are just sticking with the googlies and the flipper, which is thing that because leg spinner is a bowler who should have a big heart. Yeah. A bowler who cannot have a big heart cannot bowl leg spin because you will get smacked. But you need to have that heart. But I don't see that kind of cricketers coming nowadays. So Danish bhai, I'll quickly very ask you hypothetically. I'll give you 4 batsmen. तो आप इनको किस तरीके से बॉल डालते अगर आज वो आपके सामने आते? अगर आप विराट कोहली को आउट करना चाहेंगे तो what will be your go-to delivery to get Virat Kohli out? विराट कोहली को आउट करने के लिए I will have 2 slips and a gully. Everyone in the circle, 2 pads, attack on him because I have 6 balls. I can play with him. I can put him in the front area and get him out. Try to play a shot. If a batsman try to play a big shot, there you are in the game. If you can block him in the front, if you first put the fielders back, the batter will feel okay यार ये पहले से डरा हुआ है इसको मैं ले लूं. लेकिन अगर आप बैटर के ऊपर आ जाओ उसके सर पे बैठ जाए कि आजा भाई तू मुझे मार के बता दे. There you are in the game. बाबर को कैसे आउट करेंगे? बाबर को तो आपने काफी क्लोजली देखा होगा यंग डेज से. व्हाट विल योर गो टू बॉल? इनके कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. इनको बस आगे बॉल करनी है, वेरिएशन से बॉल डालनी है, फील्डर ऊपर रखने हैं, 2 बॉल डॉट करनी है, तीसरे पे इन्होंने मारना ही मारना है. वहां फारिक तो कई पेशेंस की कमी लग रही है दानिश भाई. बैट्समैन में पेशेंस की कमी हो गई है आजकल क्योंकि पेशेंस की बड़ी कमी हो गई है बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में आप देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट की एक रिवाज चेंज हो गया है. इंग्लैंड ने तो पूरा रिवाज चेंज कर दिया है, उसको बिल्कुल T20 की तरह बना दिया है. लेकिन जब तक आप पेशेंस होना चाहिए ना, मतलब कि 2 बॉल अगर बॉलर्स का अच्छा स्पेल चल रहा है तो वहां पर उसको रिस्पेक्ट तो देनी है. अच्छे स्पेल के ऊपर तो आप उसको नहीं मार सकते हो.
जब राइट, बैट्समैन जब बैटिंग अच्छी कर रहा होता है तो बॉलर भी ये चाहता है कि नहीं यार ये अच्छी बैटिंग कर रहा है, ओके मुझे हाँ, थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि राइट, टेस्ट क्रिकेट में पीरियड अप एंड डाउन होते हैं, फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है मामला। राइट, तो यहाँ पर यही है कि आजकल के जो बैटर है वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर जाते हैं। इफ यू राइट, सी इंटेलिजेंट बॉलर इज बॉलिंग एट यू, यू कैन नॉट मेक मिस्टेक लाइक अर्ली ऑन आपने 2 बॉल डॉट की, प्रेशर आ गया यार दो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई है आजकल सोशल मीडिया इतना आ गया, सारी चीज आ गई, लोग कहते हैं अरे यार ये स्ट्राइक रेट पे ऐसा नहीं खेलता है। बाबर की बात कर लो, कल राइट, 52 पे 100 मारा, लोग कहाँ गए जो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे। कैसी भी टीम है, ठीक है बी टी सी टीम आई हुई है, लेकिन राइट, 100 ही होता है, 100 बिल्कुल, होता है जहां भी आप खेलो, क्योंकि कंसंट्रेशन आपकी स्किल्स वहां पर जरूरत पड़ती है जहां राइट, भी आप खेलोगे। तो ये बड़ा एक इश्यू है कि लोग स्ट्राइक रेट, जिन्होंने कुछ खेला नहीं है और थोड़े सी इनके पास लोग हैं, लोग बात करते हैं कि स्ट्राइक रेट, अरे भाई जाके ग्राउंड में जाके खेलो तो सही। जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा, बिल्कुल, क्राउड का प्रेशर, कमेंट्री का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, पूरा सिलेक्शन का प्रेशर, सब प्रेशर आएगा वहां पर, एक ही बॉल खेल लो तो आपको पता चल जाएगा। लोगों को ये समझना चाहिए कि इट्स नॉट इजी। ये वो राइट, सोफे में बैठ के मैच देख रहे हो और उस पर कमेंट कर रहा है यार मैं होता तो मैं ऐसा खेल लेता, होता तब ना, नहीं उस राइट, कैलिबर नहीं है तो वहां तक नहीं पहुंच सके आप। तो ये राइट, सब चीजें हैं कि लोग समझते नहीं है, सोचते नहीं, लोग बस स्ट्राइक रेट उसके ऊपर बात कर जाते हैं। अभी भी लोग बात कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव नहीं रन कर रहा, उसकी फॉर्म नहीं राइट, चल रही आईपीएल में, ठीक है, लेकिन वो लड़के को मैं अभी भी दाद देता हूं कि वो लड़का अपने शॉट से डरता नहीं है, आउट हो रहा है अपने फेवरेट बिल्कुल, शॉट से आउट हो रहा है, लेकिन खेलता है साला, मतलब वो राइट, खेलेगा। राइट, ये होता है फियरलेस क्रिकेटर, और ये फिर आगे जाके जब बैट पैच इनका जब निकलेगा ना, बहुत जल्दी निकल करेक्ट, जाएगा, और फिर यही राइट। प्लेयर जो है टॉप नॉच प्लेयर बन जाते हैं। आई आज ही हैव बोल्ड 25 पे अगेंस्ट द 40 ग्रेट्स। करा दानिश भाई, आज ही 25 पे 40 करा उसने। हाँ तो कर आज दिया थोड़ा ना रन वो। लगा। हाँ तो मतलब आ जाता है कि आई हैव बीन अगेंस्ट द ग्रेट्स लाइक ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया लैंगर, हेडन, आई हैव बोल्ड अगेंस्ट देम, एडम गिलक्रिस्ट। तो पता चलता है कि यार साला मजा आता है बॉलिंग करने में जब कोई राइट, बड़ा प्लेयर हो सामने। मतलब अभी राइट, की क्रिकेट में मैं समझता हूँ कि ठीक है यार प्लेयर है, ओके है, लेकिन इनको राइट, पकड़ना बहुत आसान हो गया आजकल। करेक्ट। तो दानिश भाई, अभी युजवेंद्र चहल इंडिया के प्रीमियर लेग स्पिनर हैं, पर वर्ल्ड कप में हम सबके लिए भी बड़ा बैफलिंग था कि वो बेंच पे बैठा रहा, बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेला वर्ल्ड कप के अंदर, वहीं वापस आ गया, कोई क्रिकेट नहीं। पर इस साल भी आईपीएल के अंदर 10-11 विकेट ऑलरेडी निकाल चुका है। तो चहल को जितना आपने देखा है, व्हाट इज योर टेक ऑन चहल, व्हाट इज हैपनिंग विद हिम? विद हिम मैं तो काफी टाइम से कह रहा हूँ, पता नहीं वहाँ कोई इंडिया में उसके जो लेग स्पिनर कोच है, स्पिनिंग कोच है, बता नहीं पा रहे कि भाई करना क्या है। He's राइट, struggling. He needs to go back to the domestic cricket. वहां पर 25-30 ओवर करेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आए इंडिया के लिए। विकेट लेना, आप ऑर्डिनरी बॉलर को भी डाल दो ना तो वो भी विकेट ले लेगा आजकल। आईपीएल के राइट, अंदर एक बैटर को बॉलिंग करवा दो, वो भी एक आध दो विकेट में मैच में लेता रहेगा। विकेट का इशू नहीं राइट, है, राइट, इशू है कि इकोनॉमी या, कहाँ जा रही है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, यो लीकिंग अवे द रन, जहां मिडिल पार्ट में आपको विकेट लेनी है और कंटेन करना है, वहां पर वो राइट, चीज नहीं हो रही है। वहां पर क्या राइट, हो रहा है कि विकेट आ जाती है लेकिन रन बहुत सारे चले जाते हैं। अगर मैं करेक्ट, एक ओवर में 16 रन देके एक विकेट लेता हूं तो विच इज गुड, और बैड फॉर माय, विच इज वेरी बैड फॉर माय टीम। आई या, एम लीकिंग या, अवे 16 रन एंड टेकिंग अ विकेट इन अ ओवर, इट्स नॉट राइट, ऑन। इफ यू आर अ राइट, प्रीमियर बॉलर which is या, not on with a premier bowler, अगर आप प्रीमियर बॉलर है, यूवी चहल का इतने टाइम से 2 साल से मैं बात कर रहा हूँ, वो तेज करने की कोशिश कर रहा है, वो फ्लाइट नहीं कर रहा है, वो लूप नहीं दे रहा, उसका रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि लेग स्पिनर, देखिए लेग स्पिन क्या एक आर्ट है, और या, लेग स्पिनर का लेग स्पिन करना ही जरूरी है। या, बिकॉज राइट, व्हेन इन माय क्रिकेट डेज, जब मैं खेल रहा था, आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, वहां परफॉर्म किया, सो आई हैड अ प्लेजर टू मीट द ग्रेट रिची बैनो। तो ओके, उन्होंने भी मुझे एक ही चीज सिखाई कि यार लेग स्पिन को मास्टर करना है। आई टेल टू एवरीवन कि लेग स्पिन मास्टर हुई सारी चीज आ जाएगी, लेकिन यहाँ करेक्ट, पर तो साला कोई लेग स्पिन करता ही नहीं, सब आके देर मार सारे वेरिएशन, दौड़ 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 दौड़। हाँ, अरे भाई लेग स्पिन तो लेके आओ। इवन के टेस्ट मैचेस के अंदर भी देखता हूँ कि जहां पर, अगर मैं अश्विन की यहाँ बात करूं थोड़ा सी, हाँ, अश्विन रिलाई करता है ज्यादा अपने कैरम बॉल पे, लेकिन भाई या, आपका जो ऑफ स्पिनर है वो नहीं ऑफ खेल स्पिनर, पाते लोग, तो कैरम बॉल तो आप क्यों लेके आ रहे हो, उस पर तो राइट, मार लग जाती है, कभी आपको सीधी कर देते हो। तो ये राइट, सारी चीजें हैं कि स्पिन डिपार्टमेंट को सही तरह से देखना है, खासकर से यंगस्टर्स है। अभी इस करेक्ट, दौरान क्या हुआ है कि कुलदीप यादव हैज कम अप वेरी वेल। या, कुलदीप यादव इज बॉलिंग प्रीटी गुड, क्योंकि वो लूप दे रहा है, तेज बॉल नहीं कर रहा, अपना या, वेरिएशन यूज करता है, जहां वो तेज करने जाता है उसको भी मार लगती है। क्योंकि राइट, कोचेस का काम और
कप्तान का काम ये है कि यार आप उनको दिलेरी दे, यार तेरे 4 ओवर है ना, तू मुझे दिल खोल के बॉलिंग कर, जो भी तेरे को पड़ता है पड़े, लेकिन तू अटैकिंग राइट, विकेट दूंगा, फील्ड दूंगा तेरे को, तू मुझे आउट करके दे। लेकिन वो राइट, वाला फैक्टर नजर नहीं आता। वो फैक्टर मुझे थोड़ा नजर आता है हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंदर, जिस तरह वो ओके, कैप्टनसी कर रहा है, गुजरात टाइटंस की तरफ से कैप्टनसी कर रहा है, जिस तरह से वो व्हाइट बॉल टीम को देखे, सारी टीम को अगर आप देखें, केएल राहुल की क्रिकेट कहाँ चली गई है? केएल राहुल इज स्ट्रगलिंग लॉन्ग टाइम। ठीक है वो या, रन कर रहा है, 50 कर रहा है, लेकिन डर डर के कर रहा है कि भाई रन हो राइट, जाए, कैसे भी 50 रन हो जाए मेरे भाई, कैसे भी हो जाए। ऐसा नहीं है, या, 50 रन आपको करने हैं तो तरीकेकार से करना है। केएल राहुल, उसके अलावा जो लड़के मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए होने चाहिए, अभी से सेटअप में आ जाने चाहिए। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर दिख रहे हैं यार, मैं इसका फैन हो गया हूँ साई सुदर्शन का। व्हाट अ बिल्कुल, प्लेयर, बहुत अच्छा, या, व्हाट अ प्लेयर इज, क्या खेलता है। रिंकू सिंह, उसकी स्टोरी या, आप देखिए, उसकी लाइफ की कोई उसको राइट, जानता नहीं था, आके 5 राइट, बॉल में 5 छक्के मार के 4 रन, अपना नाम ही कर दिया। एक फिनिशर एक और मिल गया आपको, नीतीश रैना, जिस तरह कप्तानी कर रहा है, खेल रहा है, क्या प्लेयर है। या, सबको या, पता है कि यार ये मौका है कि इंडिया टीम में आने के लिए, लेकिन जो इंडियन टीम के सीनियर प्लेयर है, जो करंट टीम या, के साथ है, वो क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे ज्यादा बढ़िया। राइट। तो दानिश भाई, बिफोर आई जस्ट क्लोज दिस चैट, मैं आपसे दो बहुत अहम मुद्दों पे बात करना चाहूंगा। अभी एशिया कप होने वाला है, बट किसी को नहीं पता कहाँ हो रहा है, कौन कहाँ खेल रहा है। तो आपका क्या टेक है इस मैटर पे कि भारत ने बोल दिया कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, तो वहां से एक सुझाव आया है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच और इंडिया के मैचेस जो है न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। तो ये कब खत्म होगा? इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या दिख रहा है आपको कि ये हर टूर्नामेंट से पहले ऐसी बात शुरू हो जाती है, भाई ये चलता डिबेट रहेगा। शुरू हो जाती ये तो जब वो दुबई, वो जब वर्ल्ड कप चल रहा था, T20 चल रहा था, तो तभी ये मामला शुरू हो गया था। चेयरमैन साहब ने कुछ बोल दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये मुझे पता है पृथ्वी पे होगा, हमारी पृथ्वी पे होगा, है? कहीं भी होगा। और देखे देखे यार, थोड़ा सा यहाँ पर देखना चाहिए कि यार ठीक है, पाकिस्तान अपनी जगह पर जो लॉजिक लेके आ रहा है, वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हो गई है। वो या, बात भी सही कर रहा है कि यार नहीं, सारी टीमें आ रही, आप भी आए। और इंडियन टीम ने पहले भी जब बायलैटरल सीरीज थी मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, जब मैं या, खेल रहा था, तो बड़ी जबरदस्त खातिर तवाज़ा की थी, और काफी बिल्कुल, सीनियर जर्नलिस्ट बहुत आए हुए थे, लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। ठीक है वो टाइम राइट, डिफरेंट है, नाउ द टाइम हैज चेंज, एवरीथिंग हैज चेंज। थोड़ा सा यहाँ देखना चाहिए कि भाई एशिया कप इतने टाइम से तो पहले हो नहीं रहा था, हुआ भी है तो राइट, दुबई में हुआ है, अबाउट राइट, सर्टन सर्टन रीजंस की वजह से। ठीक है या, पाकिस्तान को दे दिया, अभी सिचुएशन ये है, पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी अभी तक नहीं है। आप देखें सिचुएशन के हिसाब से एवरीथिंग इज करेक्ट, नॉट दैट, बट वह टीमें आ राइट, रही, क्रिकेट हो रही, सब हो रही है। तो आई थिंक पाकिस्तान, ये बात करना कि एशिया कप में अगर इंडिया टीम नहीं आएगी पाकिस्तान में, तो हम इंडिया नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने, वो तो मेरे ख्याल से यू टर्न तो हो चुका है, हो भी जाएगा, पाकिस्तान जाएगी इंडिया खेलने। और हाँ, वो नहीं हो सकता। वो सिर्फ बातें राइट, करने के लिए, बड़े बोल बच्चन मारने के लिए, फायर मारने के लिए, और कर नहीं सकते, इतनी तपड़ नहीं है, राइट, क्योंकि आईसीसी से ही राइट, बाहर हो जाएंगे। करेक्ट, करेक्ट, दूसरी बात यह है कि भाई एशिया कप का मामला, अभी थोड़ा सी यहाँ पर पाकिस्तान को देखना चाहिए कि यार ठीक है, हमारे मामलात को भी बेहतर करना है। ठीक है गर्मा गर्मी में आप गर्मबाजी में बात करेंगे, मामला तो और खराब होंगे। ठीक है यार, बिल्कुल, मान लिया पाकिस्तान बोल दे कि ओके यार, एशिया कप काउंसिल के जो चेयरमैन है जय शाह ने भी कहा कि यार ट्रैवलिंग एक्सपेंस बढ़ जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग का बढ़ जाएगा, 2 जगह मैचेस बिल्कुल, होंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है या, वो भी बिल्कुल सही बात है। तो भाई पाकिस्तान को थोड़ा ये समझना चाहिए कि चलो यार ठीक है, इस दफा हम दुबई में खेलते हैं, चलो आ जाओ दुबई में बिल्कुल, आ जाओ, हम इंडिया भी जाएंगे। क्योंकि हाँ, पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म नहीं सोचता, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम है कि लॉन्ग टर्म सोचे, क्योंकि आपके 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास है। बिल्कुल, आप दुबई में खेले, दुबई में आपके बोर्ड मेंबर्स आके मिले, थोड़ी सी अच्छी सी पीआर करे, अच्छा सा थोड़ा वो करे, फिर इंडिया जाए, वहां जाके अच्छी पीआर करे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मिले, थोड़ी बातचीत करे, तो आपको जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में, वो टाइम पर आपको ये माइंड होना चाहिए कि यार इस दफा तो इंडिया को हम लेके आएंगे, और इंडिया आएगी इस दफा। तो आप बिल्कुल, रिलेशन अच्छे बनाए ना, आप रिलेशन अगर बिल्कुल, खराब करेंगे, इस तरह भ्रमबाजी से बात करेंगे, मतलब कि यार आप देखो तो सही, 99 मतलब कि पूरी की पूरी बीसीसीआई एक पूरी बड़ी है, बोर्ड है, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, रेवेन्यू जनरेट वो करता है, पैसा या, वहां पर है। आईपीएल में आप बात करें कि यार चलो यार हम भी अपने प्लेयर्स को आईपीएल में लेके आएंगे, थोड़ी सी चीजें, मतलब यू हैव अ टॉक। आप लड़ाई या, झगड़े से तो बैटल नहीं जीत सकते हो ना, मतलब आप क्या थोड़ा होगा। ईगो, मतलब आप कह रहे हैं ईगो शेड होगा तो लंबा एग्जैक्टली ग्रेटर गुड भाई। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ही है। हाँ इसके लिए हमारे धर्म में हमेशा झुकाना सिखाया हुआ है, तो सनातन धर्म झुकता है। तो भाई थोड़ा झुक जाओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि उससे कोई आप छोटे या बड़े की बात नहीं, छोटे नहीं हो जाओगे आप, बड़े नहीं हो जाओगे,
थोड़ा सी झुक जाओ, थोड़ा नरमी ले लो कि यार चलो ठीक है यार, जिसमें तुम्हारी खुशी है, we will do that, but we will make the relation more better and more powerful when the ICC Champions Trophy will come. करेक्ट आई थिंक बहुत बहुत बड़ी बात दानिश भाई ने आज बोली, हम सबको एक बहुत अच्छा लेसन भी दिया कि ग्रेटर गुड पे फोकस करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं थैंक यू करना चाहूंगा दानिश कनेरिया जी का, उन्होंने हमारे साथ इतनी पेशेंटली होस्ट ऑफ इश्यूज पे बात करी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दानिश जी, एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ क्रिकेट नेक्स्ट, please like and subscribe our YouTube channel, because we'll keep speaking to players like Danish Kaneria who have a very different perspective about the game and who have been a good student of the game and have been following the game from close quarters even after the retirement. So thank you for joining in, and thank you so much Danish bhai. Hope you have a really good day. Thank you. Have a nice one. Thank you. Bye.